Hello everyone, I am Preeti Rana working as an assistant professor in RPIT campus. Today I am here to discuss a very important topic of the database management system, that is transactions. How to execute transactions concurrently in the system to maintain the efficiency of database management system. Before discussing transactions, I will want to discuss a very important topic, that is schedule. And schedule is something when many transactions, that is more than one transaction, is executing in the system concurrently. See, I have taken an example of two transactions. In T1 transactions, I have considered the instructions that are executing on the databases that contains the input values A and B. मैं आपसे एक ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ जिस ट्रांजैक्शन में मैंने इनपुट लिया है अपना A और B और उसमें मैं एक्शंस, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, एंड हियर आई एम एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस कंकरेंटली, गोइंग टू execute the instructions concurrently in the system. See, in first transaction we have different types of instructions, and I have considered that the total number of instructions in a transaction are n1. Okay, and in T2 I have considered the number of instructions in the transactions as n2, and the data inputs that I have considered here are A and B. So it can be anything according to the user requirement, that whether I am going to do the read operation first or the write operation first. It depends upon the user requirement. I think आपको ये क्लियर होगा कि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम दो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, रीड एंड राइट. या तो आप डेटाबेस में कुछ रीड करेंगे, इनपुट वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, या आप कुछ अपडेट करके यूजर इनपुट वैल्यूज को उसमें राइट करेंगे. अब हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है. या तो हम इन ट्रांजैक्शंस को सिंगल एग्जीक्यूट करें. अगर आप आउटपुट की बात करते हैं, अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारा डेटाबेस एक से ज्यादा यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज सेम रहे, उसकी कंसिस्टेंसी हार्म ना हो. तो यहाँ अगर हम एक ट्रांजैक्शन हमारी इनपुट वैल्यूज को एक्सेस कर रही है और अगर हम पैरेलली दूसरी ट्रांजैक्शंस को उसी इंस्ट्रक्शंस पे, उसी डेटा इनपुट पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी हार्म करती है. अगर मैं इसको रीड, ये ट्रांजैक्शन इसको रीड कर रही है, लेट्स सपोज मेरी, सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल टू डिफाइन how we are going to execute the schedule. I have taken here the value of A is equals to 10. So the first instruction was read instruction. The read instruction means we are going to execute the read instruction on the value of A. That means A is first of all the T2 transaction is going to execute read operation on A, then write A. Here write A is A plus plus. That means we are going to implement the value of A as 11. So now the value changes from A equal to 10 to A equals to 11. Again we are going to execute the read operation on B. Here the value of B, it might be any value that is already there in the database management system, that is already there in the system. Let's consider here the value of B equals to 12. And let's consider the instruction write B. Here means that we are updating the value of B as B is equals to B plus 2. So here the value of B is going to update from 12 to 14. So these are the instructions executed by the transaction T2. Now I'm sorry, this is T1, this is T2. So these are the values that is being updated by the transaction T1, and here we are executing T2. So after executing these instructions by the transactions T2, the final values of A is equals to 11 and B is equals to 14. That is going to save in the database, right? If we are executing, this is the case when we are executing T1 before T2. T1 is executing before T2. Okay, so I think आपको समझ आ रहा है. यहाँ हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर मैं दो ट्रांजैक्शंस को
एक साथ एग्जीक्यूट कराती हूँ तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कराऊं, इन दैट केस हमारे डेटाबेस की वैल्यूज कैसे अपडेट होंगी, या फिर मैं दो ट्रांजेक्शन्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराती हूँ और उससे हमारी इनकंसिस्टेंसी कैसे बढ़ जाती है वो मैं आपको यहाँ से बताने वाली हूँ। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि व्हाई वी ऑलवेज क्रिएट शेड्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं T2 ट्रांजेक्शन के केस में व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट्स कंसीडर दैट T2 इज एग्जीक्यूटिंग आफ्टर T1. So here the value of B is equals to read B. So here B is equals to 14. Write B. So again write B means B plus 2. So B is equals to B plus 2. Here the value is updated from 14 to 16. So again I am executing read operation on A. So here the value of A was 11. So again I am updating the value of A. And here I am doing the update operation. So now the value changes to 12. ये तब था जब हम T1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं T2 से पहले। अब आप डिफरेंस कर सकते हैं, अगर हम T2 को एग्जीक्यूट करते हैं T1 से पहले तो क्या केस होगा, क्या ये वैल्यू सेम आएगी जो इस केस में थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ T2 की वैल्यू क्या है, डेटाबेस की बिगनिंग में वैल्यू थी A की 10 और B की थी 12, राइट। यहाँ हमने एग्जीक्यूट किया और उसको अपडेट कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब दो ट्रांजैक्शंस को हम इंडिपेंडेंटली रन करते हैं तो उसमें हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, बट इन दैट केस एक प्रोसेसर कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है किसी भी अदर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो द सीपीयू, द एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू इज लाइक रिड्यूस हो रही है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू इज सिटिंग आइडल, वो खाली बैठा है, उसके पास कोई ऑपरेशन नहीं है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इट माइट बी द केस कि जब उसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको वेट करना पड़ रहा है सीपीयू को इनपुट लेने के लिए। बट हम उसकी एफिशिएंसी कैसे बेटर कर सकते हैं कि जिस टाइम T1 ट्रांजैक्शन वेट कर रही है किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग, आई थिंक ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये वर्ड आपको बहुत क्लियर है। कंटेक्स्ट स्विचिंग हम क्यों करते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि सीपीयू कभी आइडल ना बैठे, उसके पास हमेशा एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शन किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेट कर रही है तो उस टाइम सीपीयू कंटेक्स्ट स्विचिंग कर जाए दूसरे इंस्ट्रक्शन के पास। बस इसको करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि जब आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और दो इंस्ट्रक्शंस, दो ट्रांजैक्शंस को पैरेलली कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन दैट केस आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस इंस्ट्रक्शन में, अगर इस ट्रांजैक्शन में रीड ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है ए के ऊपर और फिर बी के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, तो जब आप कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं सीपीयू की एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन पे, तो इसमें रीड ऑपरेशन बी पे पहले, ऐसा नहीं है कि पहले आपने ए पे ट्रांसफर किया कंट्रोल को और फिर जब आप वापस जाए तो आप किसी और इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करें और फिर इसके पास जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप प्लस एक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लस एक्शन क्या कहता है? ए प्लस बी, आप ए की वैल्यू दे रहे हैं, बी की वैल्यू दे रहे हैं और फिर प्लस कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि पहले आप प्लस करें और फिर वैल्यूज दें? क्या आप ए की वैल्यू बाद में और बी की वैल्यू बाद में दे रहे हैं और प्लस प्लस एक पहले कर रहे हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम द केस विद सीपीयू की ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या होता है शेड्यूल को बनाने का? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर T1 के पास टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस N1 है और T2 के पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस N2 है, तो जो शेड्यूल आप जनरेट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस शुड बी N1 प्लस N2। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो हमारा शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है। और शेड्यूल का ये टॉप मोस्ट रूल है कि अगर एक ट्रांजैक्शंस में N1
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, T2 में N2 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो शेड्यूल जनरेट होगा उसमें कितनी होनी चाहिए, N1 प्लस N2। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे, एक तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को हम यही खत्म करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी कि कैसे एक शेड्यूल को हम दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं और कैसे उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई RPIIT channel. This is what my discussion is on schedules. Thank you.